بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں طوفانی بارشوں کے باعث تباہ کاریاں، لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑی تودے گرنے سے روڈ 2 دن سے بلاک ہے، جس سے ہزاروں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ہزاروں سیاح بھوکے پیاسے بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ راکھی گاج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ علی موسیٰ رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ سیاحتی مقام فورٹ منرو کو ملانے والی بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ ڈی جی خان کے علاقے راکھی گاج نیلی مٹی کے مقام پر بند ہے۔ راکھی گاج میں لینڈ سلائیڈنگ سے دونوں صوبوں کی ٹریفک 2 روز سے معطل ہے۔ ہزاروں سیاح راستے نہ ہونے کے سبب پھنسے ہوئے ہیں۔ موبائل نیٹ ورک، اشیاء خوردونوش سمیت کوئی چیز بھی دستیاب نہیں ہے۔ مسافر سیاح لینڈ سلائیڈنگ خطرناک ایریا میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں 2 دن سے لینڈ سلائیڈنگ اور پہاڑی تودوں کے گرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سیاح خوفزدہ ہو کر گاڑیوں میں محصور ہیں۔ طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بارڈر ملٹری پولیس کو ملبہ ہٹانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مسافر سیاح 2 دن سے سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ گھروں میں رابطہ نہ ہونے سے مزید پریشانی لاحق ہے۔ رات 12 بجے کے ادھر پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی مشکل حل ہو رہی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی رستہ کلیئر ہو رہا ہے، نہ کوئی پوچھنے کے لیے ہے۔ مسافر سیاحوں کا کہنا تھا کہ 2 روز سے روڈ بند ہونے سے پھنسے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ مریضوں، بچوں اور بزرگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ NHA والے افسران سب غائب ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ گاڑی ہمارا کھڑا ہے اور کھانے پینے میں کچھ چیز بھی نہیں ہے اور راستہ بند ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گاڑیوں میں پیٹرول ڈیزل ختم ہو گیا ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کی سبزیاں اور فروٹ روڈ بلاک اور بارشوں کی وجہ سے خراب ہو چکی ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی معطل ہونے پر قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان محمد اکرام بارڈر ملٹری پولیس کے ہمراہ روڈ کلیئر کرانے اور لینڈ سلائیڈنگ پہاڑی تودوں کے گرنے کے مقامات پر اپنی گاڑی میں محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ نے پہاڑ کو کاٹنے والی مشینری منگوا لی ہے، مگر مشین کی تھرتھراہٹ سے پہاڑی تودے گرنے سے ڈرائیور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ طوفانی بارشوں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین حسین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، کوہ سلیمان، راکھی گاج۔ ڈی جی خان میں رود کوہیوں نے تباہی مچا دی۔ سیلاب کے باعث متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ کمشنر نے ریسکیو 1122 PDMA کے ہمراہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ آصر اسفاق کی رپورٹ۔ کمشنر عثمان انور نے ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر اور PDMA فیصل فرید کے ہمراہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقاتیں کی اور سیلاب کے لیے ریلیف اقدامات کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 25 اگست سے چوتھے سپیل کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سپیل آ رہا ہے 25 کو، تو اس سے پہلے برائے مہربانی کسی محفوظ مقام کے اوپر آپ شفٹ ہو جائیں۔ جب سپیل نکل جائے گا، آپ کے گھر ہیں، حکومت نے کمپنسیشن بھی اناؤنس کی ہوئی ہے، آپ لوگ واپس آ جائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی بھی حفاظت کریں اور کسی اور کو بھی کسی قسم کا اس میں حادثہ نہ ہونے دیں۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے ریسکیو افسران کا کہنا تھا کہ آپریشن میں 120 بوٹس حصہ لے رہی ہیں۔ اب تک 10,000 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے اب تک 31 اموات ہو چکی ہیں۔ تو اس وقت ریسکیورز سارے کام کر رہے ہیں۔ ہماری 120 بوٹس ہیں، پہلے سے ہم نے جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا ہے، اور اگر کہیں پہ بریچ ہوتا ہے یا نیا ایریا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم ریسورسز کو موبلائز کر دیتے ہیں۔ اب تک تقریباً ہمارے 9 سے 10,000 لوگ ہیں جن کو ہم ایویکویٹ کر چکے ہیں۔ افسران نے لوہار والا، بستی وڈانی اور دیگر علاقوں کا جائزہ بھی لیا۔ کیمرہ مین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ جام پور سے 8 کلومیٹر دور طیب ڈرین میں جھمٹ کے مقام پر 100 فٹ شگاف پڑ گیا۔ رود کوہی کا سیلابی پانی رکھ عزت میں تباہی پھیلانے لگا۔ رود کوہی کے سیلاب سے طیب ڈرین میں بستی جھمٹ کے مقام پر شگاف نے جامپور سے 8 کلومیٹر دور رک عظمت والا کو تباہ و برباد کر دیا۔ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت کپاس کی تیار فصل تباہ، جبکہ مکانات ملیامیٹ ہو گئے۔ انتظامیہ کی نااہلی پر سلام متاثرین نے کہا کہ رات سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی مدد کو نہیں پہنچا۔ فصلات دے نقصانات کافی سارے تھے، مالی نقصانات تھے، جانی نقصانات بھی تھی نے پین اور مکانات بھی ڈھہ گئے۔ پانی بہت زیادہ ہے۔ انتظامیہ کی طرف کوئی اقدامات کرنی تھی نہیں پہ، عوام اپنی تحت مدد آپ کوئی کام کرنا پہ، لیکن کوئی تھا ریسکیو اور کوئی ٹیم کے نہیں ہے سر ایک نے۔
सैलाब से मुतासर अफराद का कहना है कि अपनी मदद आप के तहत काम कर रहे हैं। अफसरान फोटो सेशन करके चले जाते हैं। इलाके में फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा है। अपनी मदद आप के तहत 5000 फी घंटा क्रेन हासिल करा रखी है। अब तक किसी ने हाल तक नहीं पूछा। अपनी मदद आप देता है, सारा काम करेंगे प्यों अपनी मदद है, सिर्फ क्या करेंगे अंदर फोटो सेक्शन कराते बजे वे बस्तियां बुड़ गए, माल बुड़ गए, दाने लुढ़ गए, बंदे दे नुकसान ही थी गए। बल हुण ये करेन लगी खड़ी है, करेन दा 5000 रुपया फी घंटे दा आप भरें दे खड़ू। रोद कोही का सैलाबी पानी दही इलाकों के बाद अब आबाद इलाकों में भी तबाही फैला रहा है। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ देना समझ से बालातर है। रख अजमत वाला बस्ती जोगियानी में रात से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की बेहिसी की इंतहा है कि रात से अब तक इंतजामिया यहाँ पर उनकी मदद के लिए नहीं पहुँची। अब लोग अपनी मदद आपके तहत बच्चों को महफूज मकाम पर भी मुंतकिल कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि उनके तमाम फसलात तबाह होगी। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, जामपुर। कोटछुट्टा में वडो रोद कोहिए की तबाहकारियां कप्पर ड्रेन में शगाफ पड़ने से मौसा, ठट्ठा, गबूला के मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। वडोर रोदकोही के सैलाबी रेले ने कोटछुट्टा के इलाकों में तबाही मचा दी। 75,000 क्यूसेक का नया आने वाला रेला कप्पर ड्रेन बर्दाश्त न कर सका। कप्पर ड्रेन में चोटी रोड के दोनों अतराफ गड्ढे पड़ गए। पानी ने अड्डा समंदरी बस्ती, सुवारा खान, हजबानी बस्ती, जखड़ बस्ती, मातम समेत मौजा, ठट्ठा, गबोला के मुतअद्दिद देहात अपनी लपेट में ले लिए, जिससे सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदम हो गए, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल तबाह हो गई। रेस्क्यू 1122 और तहसील इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाई के जरिए पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा ज़ियाउल्लाह चौधरी का सैलाबी सूरत हाल पर कहना था कि मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। बेघर अफराद फ्लड रिलीफ कैंप पर रिहाइश रख सकते हैं, जिन्हें 3 वक्त का खाना और दीगर तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। तहसील इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो मुकम्मल इस वक्त फील्ड में है और लोगों के साथ खड़ी है और इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान कम से कम हो। हमारी रेस्क्यू टीम में फुल ऑपरेशनल है, 24 घंटे वो काम कर रही है। लोगों को जहाँ पे प्रॉब्लम है निकालने की तो उनको निकाला जा रहा है वहाँ पे। सैलाब से तबाह हाल लोगों की देखभाल के लिए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियार भी अड्डा समंदरी पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। इनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर डिजर्विंग बंदे तक हम पहुँचें। उनको कुक्ड फूड भी दी जा रही है, इसके अलावा फूड हैम्पर्स भी दिए जा रहे हैं और जहाँ ज़रूरत है उनको टेंट्स भी दिए जा रहे हैं। मुश्तल सैलाब मुतासरीन की जानिब से किसी भी जगह गैर कानूनी कट लगाए जाने के पेश नज़र पुलिस की जानिब से भी कप्पर ड्रेन की कड़ी निगरानी की जा रही है। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात अली अफजल शाही का तहसील तौंसा शरीफ का दौरा। सूबाई वज़ीर मवासलात ने चौकीवाला छप्पड़वाला रोड मंसूबे का मुआयना किया। FWO के अफसरान ने बलोचिस्तान से मिलाने वाले रोड प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं असमत उस्तार की इस रिपोर्ट से। सूबाई वज़ीर मवासलात व तामीरात अफजल शाही ने चौकीवाला और ज़ेर तामीर रोड प्रोजेक्ट साइट का मुआयना किया। सूबाई वजीर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 105 किलोमीटर चौकीवाला छप्पड़ रोड 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। जलेबी चौक के करीब ज़ेर तामीर रोड रोदकोहियों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासिर हुआ है। सूबाई वजीर ने कहा कि चौकीवाला छप्पड़ रोड मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। रोड प्रोजेक्ट में हायल रुकावटों को जल्द हल किया जाए। उन्होंने कहा कि रिवाइज्ड PC1 मुतलका फोरम में ज़ेर बहस लाजमी लाया जाए। सूबाई वज़ीर मवासलात अली अफजल शाही को शेख खलीफा पुल पर भी ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने शेख खलीफा पुल की मुकम्मल मॉडल स्टडी पर फोकस करने की हिदायत की। सूबाई वजीर को महकमा लाइव स्टॉक के ज़ेरे तामीर ब्रेड तजर्बियाती स्टेशन की सैलाबी पानी से गिरने वाले 4 दीवारी बारे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्होंने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रोड का मुआयना किया है। ये जो रोड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये कनेक्ट करेगी बलूचिस्तान को तौंसा के साथ। तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली है, देखा है, ब्रीफिंग ली है और उस पर हमने डिस्कशन हुई है कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और आगे हमने उन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करके जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सूबाई वजीर
के दौरा के दौरान सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स मुजाहिद शेरदिल, ADCR तैयब खान, AC तौसा असद चांडिया, SP गयूर अहमद, सेक्रेटरी राव इरशाद सैन मियां इफ्तिखार, SC शेख एजाज भी उनके हमरा थे। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, वही तौसा शरीफ। मुल्तान में बाबा सफरा रोड 2 माह से टूट फूट का शिकार है। रोड खस्ता हाल होने से कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर है, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चे भी मुश्किलात से दो चार हैं। सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट। बाबा सफरा रोड गुज़िश्ता 2 माह से टूट फूट का शिकार है। बाबा सफरा बाजार से शाह शम्स दरबार तक टूटा हुआ है। खस्ता हाली के बाइस कारोबारी जिंदगी भी शदीद मुतासिर है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस मसले से दो चार हैं। सर ये बाबा सफरा यहाँ पे किसी घर में पानी नहीं है। अब इन्होंने पाइप लाइन तोड़ दिया। लेडीज हजरात सर पानी की बोतलें कहने उठाए गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मेरे वज़ीर आज़म साहब से यही दरख्वास्त है सर ये जल्द से जल्द काम करवाया जाए। इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना था कि 2 माह से रोड खस्ता हाली का शिकार है। मुतादिद बार दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया लारे के अलावा कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देती। यूसी नंबर 8 बाबा सफरा में आपने देखा है कि ये सारा बुरा हाल है। लोग बहुत जो है ना परेशान है। ये 3 माह से गली टूटी है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तोड़ के चले गए हैं। गटर लाइन है, औरतें बेचारी इधर गिरती हैं, मोटरसाइकिल सवार जो है ना वो गटरों में गिर जाते हैं। इंतजामिया से मुतालबा है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के हमरा सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुल्तान में अलंग दौलत गेट के मकीन साफ पानी से महरूम। वासा की गफलत के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 माह से वीरान है। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। साफ पानी दो, हमारे हकूक अदा करो। मुल्तान में साफ पानी के मसाइल बढ़ने लगे। इंतजामिया की गफलत के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वीरान रह गए। अलंग दौलत गेट में बागीची मिर्जा जान के इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शहरी साफ पानी न मिलने पर शदीद परेशानी में मुब्तला दिखाई दिए। सरदरा से यहाँ पर रह रहा हूँ। 6 महीने से हमें पानी की किल्लत हुई पड़ी है। अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। 3 महीने से गलियों के अंदर जो पानी आता था वो भी टूट फूट का शिकार हो गई है। पैप जमीन के अंदर है, नालियों के अंदर है। ये तक आलूदगी वाला पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। शहरियों का कहना था कि 3 माह से फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लगे पड़े हैं। खोलते भी हैं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए। इतने कम वक्त में पानी घर तक भी नहीं पहुंचता। आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जो कि बच्चों को मुसलसल बीमार कर रहा है। 3 महीने से शुरू हुआ, वैसे तो 6 महीने से है, लेकिन अब 3 महीने से बिल्कुल पानी नहीं है। इतने परेशान है हम लोग। ये करबला बनी हुई है UC 57, मोहल्ला कमंगरा वाला, जट्टू शाह, मोहल्ला कुम्हारा वाला, मोहल्ला कालीन बाफ, इधर बिल्कुल गलियों में पानी नहीं आता। आधा घंटा चलाते हैं, घर के आने तक पानी खत्म हो जाता है। इनका मजीद कहना था कि दफ्तर के चक्कर भी कई दफा लगा चुके हैं। सरापा एहतजाज भी है, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। इंतजामिया से मुतालबा है कि फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल किया जाए और साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। इंतजामिया की गफलत और नाअहली। मुल्तान के इलाके मीराबाद की मार्केट में कचरे के ढेर लग गए। कचरे के ढेर से ताजरों का कारोबार शदीद मुतासिर होने लगा। उनका कहना था कि 15 रोज से दुकानों के सामने कचरे का ढेर लगा है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। अमीराबाद की मार्केट में कचरे के ढेर लग गए। कचरे के ढेर से ताजरों का कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। कारोबारी मरकज है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी दुकानें इसके बिल्कुल सामने हैं, जिसकी वजह से हमारे कारोबार पे बहुत असर अंदाज हो रहा है। हमारे दुकानों में कस्टमर आता है, स्मेल की वजह से कस्टमर रुकता नहीं है। ताजरों का कहना था कि 15 रोज से दुकानों के सामने कचरे का ढेर लगा है। वेस्ट मैनेजमेंट वालों को मुतअद्दिद बार आगाह किया, मगर वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। 15 दिन जो ना कचरा पड़ा रहता है, 15-15, 20-20 दिन। ये सामने मेरी दुकान है जो ना, इसी वजह से बदबू की वजह से कोई कस्टमर यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसी वजह से जो ना हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जो ना ये सफाई करवा। उनका मजीद कहना था कि दुकानों पर बदबू के बायस कोई गाहक नहीं रुकता है। पूरा दिन बदबू में दुकान पर बैठने पर मजबूर हैं। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। मियावाली में इलाका मकीनों का सबर जवाब दे गया। सीवरेज सिस्टम की अदम दस्तयाबी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। रिपोर्ट देखिए अख्तर मजाद। नवाही इलाके गुलमीरी के मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इलाका भर में सीवरेज सिस्टम की अदम दस्तयाबी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। एहतजाज करते हुए उनका कहना था कि मस्जिद के दोनों तरफ गंदा पानी जमा हो जाता है। गुलमीरी से 100 मीटर दूर सीवरेज पाइप लाइन डाली गई, जबकि गुलमीरी को नजरअंदाज कर दिया
गया। मसला है ये अल्लाह का घर, साडा पानी का मसला है, इसका कि पानी का निकासी की वने, बस सानू कोई पैप पिछाड़ो या कोई खाला पिछाड़ो, इधर निकासी का पानी है मसला, वो सानू कोई मसले को नहीं, बस ये अल्लाह का घर है। 100 फुट के फासले से नाला बना पे है ते साड़ी मस्जिद काफ़ी तादाद बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी नमाजी जुम्मा के इज्तमात होने, इस वास्ते सीवरेज का सारा बहुत बड़ा मसला है। बस हुकूमत पाकिस्तान में मुतालबा कर सा कि साढ़े मसला हल किया वने ताकि आसानी जी सारी मुश्किलें आसान थी सके। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतअद्दिद बार अवामी नुमाइंदों से अपील की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार डीसी के पास वफ्द की सूरत में पेश हुए मगर झूठे वादे किए गए। सीवरेज पानी घरों में दाखिल हो जाता है। बारिश की सूरत में मियां वाली सरगोदा रोड का सारा पानी इलाके भर में फैल जाता है। अपने इलाके के नुमाइंदगान है, जो बहुत सारे नुमाइंदगान है, मेरे साथ बुजुर्ग गए हैं, बहुत सारी टीमें गई हैं, बार बार मैं अकेला गया हूँ, लेकिन उन्होंने हमारे जो मसला है उनको सॉल्व नहीं किया। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी सीवरेज लाइन बिछाई जाए। कैमरामैन चिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियावाली। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस की भरमार, मुल्तान दौलत गेट के मकीन वापडा और हुकूमत के फैसलों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बिजली के बिलों में ओवर चार्जिंग पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों ने किया आवाम को परेशान। ओवर चार्जिंग और जायद टैक्सेस के खिलाफ शहरियों ने बड़ा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बिल थामे दौलत गेट चौक को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। हुकूमत और वापडा के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। ये हमारे 20-30 हजार में 40-40 हजार में बिल आ गया। हम मजदूर आदमी है, हमारे मकान किराए पे है। इन हुकूमत ने हमारे गुर्बत में इतना डाल दिया, महंगाई इतनी कर दी है, हम बर्बाद हो गए। जो हमारा मीटर उतारेगा हम उनका मीटर नहीं उतारने देंगे। 4-5 हजार रुपए टैक्स है, फ्यूल टैक्स अलग है, टैक्स अलग है, और गरीब आदमी ये बिल भरे रोटी खाए, कैसे होगा ये मुमकिन। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बायस खाने पीने के पैसे भी नहीं हैं और बिजली के ये भारी बिल कहां से भरें। हुकूमत गरीब आवाम का सोच नहीं रही। जालिम किस्म के फैसले हम पर लगा दिए जाते हैं, हम जाएं तो जाएं कहां। इतने ज्यादा टैक्स आ गए हैं, बिल की कीमत, असल बिजली की जो कीमत है वो तो भरने को तैयार है, जो उसके साथ टैक्स है वो पता नहीं क्यों इतने साथ। IMF का जो मुतालबा है वो इतने ज्यादा मुतालबात है, हर चीज पे टैक्स है। 5,000 आता था, 4,000 आता था, अब 20-20 हजार बिल आ रहा है। हम बहुत परेशान हैं, छतें टूटी हैं, कर्जा ले लेके हम परेशान हुए पड़े हैं, हमें गुर्बत आ रही है, हम रोटी नहीं खा सकते। महंगाई से सताए नौजवान का कहना था कि बारिशों से घर की छतें गिर गई, उधार लेकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। ऊपर से ये भारी बिल की अदायगी कहां से हम करें। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस का फैसला वापस लिया जाए, नहीं तो वसी पैमाने पर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में बारिशों से लकड़ी मंडी चौक बारिश के पानी में डूब गया। शहरियों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया। दूसरी जानिब इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ रही। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। बारिशों से मसरूफ लकड़ मंडी चौक पर ताहद्दे निगाह तक पानी जमा हो गया। गली मोहल्लों में पानी के तालाब बन गए, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बाजारों में कई फीट पानी जमा होने से कारोबार ठप हो गए। इतने दिनों से बारिशें हो रही हैं, शहर डूबा हुआ है, लोगों के घर मकान तबाह हो रहे हैं, हमारा कोई अवामी नुमाइंदा सामने नहीं आया। शहरियों ने पानी की निकासी न होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और जिले इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया हमारी कोई बात नहीं सुनती और न ही कोई अमली इकदाम किया जाता है। ये रोड बनी है ना, उसकी वजह से और बाकी शहर की वजह से सारा पानी यहाँ पे जमा होता है और सब दुकानें बंद है, कोई इंतजामिया यहाँ पे नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से निकासी आप के लिए फौरी अमली इकदाम का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान मजार हजरत शाह शम्स पर सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया गया। मजार पर 30 से ज्यादा सोलर प्लेट्स लगाई गईं। महकमा औकाफ की जानिब से 3 बड़े मज़ारात पर सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। सोलर सिस्टम की तनसीब पर ज़ायरीन की खुशी भी दीदनी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। हजरत शाह शम्स के मज़ार पर सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया गया। मज़ार पर 30 से ज्यादा सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। महकमा औकाफ की जानिब से 3 बड़े मज़ारात हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, हजरत शाहरुख आलम और हजरत शाह शम्स मज़ार पर सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। बिल्कुल सही है, निज़ाम अच्छा चल रहा है, सही सहूलत है, हर चीज़ आने जाने की ज़रा ज़्यारत की हाज़िरी लेने आया था।
मज़ार को सोलर एनर्जी फ्राहम करने के लिए 538 केवी वाट की एनर्जी प्लेट्स लगाई गई हैं। सोलर सिस्टम की तनसीब से ज़ायरीन भी खुश दिखाई दे रहे हैं। माशाल्लाह, अब तो यहाँ पे बेहतर फैसिलिटी है, यहाँ पे बहुत अच्छी सोलर की सहूलत में बिजली जा रही है, बिल्कुल इतना आगे हम सुकून मिला से आए हैं, खुशी हुई यहाँ पे आके। ज़ायरीन का कहना था कि सोलर प्लेट्स लगने से हर वक्त लाइट दस्तयाब होगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अब कुछ खेलों की बात करें। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप मुल्तान के रंगारंग मैचेस जारी हैं। इवेंट में 24 टीमें शरीक हैं। मैच देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद रही। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सुहेब बुखारी। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप मुल्तान 2022 के रंगारंग मैचेस जारी हैं। आज टूर्नामेंट का चौथा रोज है, जबकि टूर्नामेंट में रोजाना की बुनियाद पर 4 मैचेस खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट का चैंपियनशिप का तो कल हमारा मैच बंद थे, बारिश की वजह से बारिश ग्राउंड में पानी खड़ा हो गया था। तो मैं अहले मुल्तान को कहूँगा कि आप दोस्त आएँ, फ्री तफरी आपको दे रहे हैं। हम लोग फुल राइट चैंपियनशिप करा रहे हैं, फ्री तफरी, इसके अंदर कोई टिकट नहीं है। तो मैं सब मुल्तान के अवाम को और मुल्तान के स्पोर्ट्समैनों को और फुटबॉलरों को कहूँगा कि आप आएँ, ग्राउंड में मैच देखें ताकि आप इंजॉय करें। फ्लड लाइट टूर्नामेंट देखने के लिए शायकीन फुटबॉल की कसीर तादाद ग्राउंड का रुख कर रहे हैं। इस मौके पर शायकीन फुटबॉल का कहना था कि मुल्तान में इस तरह के मैचेस का होना किसी नेमत से कम नहीं। रंगारंगी रोशनी में जैसे फुटबॉल हो रहा है हमारा, तो मैं शायकीन को कहूँगा कि आप आएँ और अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, ताकि जो एक हेल्दी एक्टिविटी है वो खुद देखें भी और खेलने में भी उनका शौक हो ज़्यादा से ज़्यादा। फुटबॉल के मैच हो रहे हैं मुल्तान के अंदर, कोशिश आपके बहुत हम लोग शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। बहुत मजा आता है हमें, अवाम माशाल्लाह बहुत सारी यहाँ पे आती है, एंजॉय करती है। हमें हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद महाना सतह पर करे जो सस्ती तफरीह का बाइस बने। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप के रंगारंग मैचेस जारी हैं, जबकि इवेंट में जीतने वाली टीम के लिए 1 लाख रुपए से जायद के इनामात भी रखे गए हैं। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स जारी हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ी अपनी खेल की सलाहियतों को निखारने के लिए प्रैक्टिस मैच खेलने में मसरूफ नजर आए। दानियाल इकबाल की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स का सिलसिला जारी है। बैडमिंटन के खिलाड़ी भरपूर जोश व जज्बे से खेलने में मसरूफ दिखाई दिए। खिलाड़ियों का कहना था कि पंजाब गेम्स अगले माह मुनक्किद होंगी, इनमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर गोल्ड मेडल अपने नाम करेंगे। पंजाब गेम्स आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़के इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। पॉइंट्स प्रैक्टिस इसके लिए सबसे अच्छी इनकी 4 बजे से लेकर टिल गोइंग ऑन अभी तक ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद स्प्रिंट्स और उसके बाद इनकी वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ियों का कहना था कि बैडमिंटन खेलने से भरपूर जिस्मानी वर्जिश होती है। बैडमिंटन खेलने से दिमाग तरोताज़ा होता है और तबीयत में निखार महसूस होता है। यहाँ हमें खेल के बहुत अच्छा फील होता है। तो ये जो हमारे कोच प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत अच्छे करवाते हैं। बैडमिंटन का खेल निहायत दिलचस्प और जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है। खेल सिर्फ तफरीह का जरिया ही नहीं बल्कि जिस्म को चाको चौबंद और सेहतमंद बनाने का भी जरिया है। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान।